ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਜੈਬਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਥਿਊਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, if x is the characteristic vector of a matrix corresponding to characteristic value lambda, then k lambda is also kx is also a characteristic value of a corresponding to the same characteristic value lambda। ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਟ A B any ਸਕੇਅਰ, A ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, AX is equal to lambda x, where x is the eigenvector and lambda is corresponding eigen value। ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ax equal lambda x। ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ kx ਹੋਏਗੀ ਉਹ lambda ਦੇ corresponding ਹੀ eigen vector ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇ ax equal to lambda x ਆ ਜੇ, ਸੇਮ x ਆ ਜੇ, x ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਤੇ lambda ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ a ਵੀ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਲੈ ਲਈ a lambda a kx, ਕਿ ਸਮਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ lambda kx, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ a kx equal lambda kx ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, kx ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੋਂ। ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਪਾ ਲਓ, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1। ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 2 into 3x, 3 into 2x, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, 6x, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 2 into 3 ਕਰ ਲਓ, 3 into 2 ਕਰ ਲਓ, 6 ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੈਮਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, kx। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ a kx equal lambda kx ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ therefore kx is the eigenvector corresponding to ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਲੈਮਡਾ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਲੈਮਡਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਿਵੇਂ, k ਨੂੰ, k ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
k ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 202, k ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, k ਨੂੰ 4 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਕੱਲਾ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। k ਨੂੰ 1 ਭਰ ਲਓ, 2 ਭਰ ਲਓ, 3 ਭਰ ਲਓ, 4 ਭਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਥਿਊਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। So next statement देखो, if x be the eigenvector of n road square matrix over the field f, चलो फर्क नहीं पैंदा कोई, field f मतलब कि ये स्केलर ने आप रियल नंबर लेने ने, then x cannot correspond to two distinct eigenvalues। मतलब x कोई आइगन वैक्टर है, ए चलो मैट्रिक्स दिता है अपन, आइगन वैक्टर दे कोरस्पोंडिंग एक ही आइगन वैल्यू आऊगी, दो नहीं आ सकती। ये शो करना अपन ने एक आइगन वैक्टर दे कोरस्पोंडिंग इको आइगन वैल्यू आऊगी, मतलब दो नहीं हो सकती। तो आप की कर रहे हैं कि लेट कर लो ax equal to lambda x, lambda 1 x1 and ax equal to lambda 2x। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੈਲਿਊਜ਼, lambda 1 lambda 2, ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ax equal to 2x ਆ, ax equal to 2x, ਆ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੋ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਮਡਾ 1x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ 2x ਕਰ ਲਿਆ। फ्रॉम 1 and 2 कराया जी अपने, फ्रॉम 1 and 2। इथों आ गया लैमडा 1 माइनस लैमडा 2x इक्वल टू ओ एक पास लिया, ये मैट्रिक्स आ जी, इक्वल टू मैट्रिक्स ही पाना अपन। हुण ये नॉन जीरो हुंदा जे ध्यान दे विच होवे, आइगन वैक्टर दी डेफिनेशन ये नॉन जीरो हुंदा। जीरो इंटू नॉन जीरो करांगे तां ही जीरो आंसर बनेगा। जीरो आंसर तां होगा जे दोनों विचों कोई एक जीरो घट्टो घट। ये तां जीरो नहीं हैगा, ये पढ़िया हुंदा आपां जिहड़ा आइगन वैक्टर हुंदा है नॉन जीरो वैक्टर हुंदा। जे आ जीरो नहीं हैगा तां आ पक्का जीरो होगा। देयरफॉर लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 जीरो होएगा। इथों लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 होगा। मतलब
कोई दो आइगन वैल्यू आप मन्नांगे एक आइगन वैक्टर के कॉरसपोंडिंगली तो दोनों सेम होणगियां, मतलब कि आइगन वैल्यू सेम ही आउणगी। बस ये तो प्रूव करना आप। देयरफॉर आइगन वैक्टर कैन नॉट correspond to two distinct आइगन वैल्यूज। दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कॉरसपॉन्ड नहीं कर सकता, मतलब कि दोनों सेम ही होणगियां। अगे कुछ न्यूमेरिकल देखने आपने, ये भी थ्योरम वांगू ही ने जी। जो ध्यान दो, जिहड़ा पहला करना हैगा वो स्टेटमेंट देख लो। इफ ए इज नॉन सिंगुलर प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो देखो ध्यान ना की प्रूव करना आपने। नॉन सिंगुलर का मतलब होंदा दिता की है आपको कि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर वो होंदा हैगा जिहदा डिटरमिनेंट नॉन जीरो होवे, मतलब जिहदा इनवर्स एग्जिस्ट करदा हो। तो स्टेटमेंट समझिए ध्यान ना, समझाने वास्ते तो मैं लिख रहा फिर समझा दूंगा। लेट लैम्डा लेट एक्स बी द आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा। corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा आप ले लिया। therefore ax equal to lambda x। हुण ध्यान दो, जिहड़ी लैम्डा है वो ए दी आप आइगन वैल्यू कहांगे, एक्स आप ए दा आइगन वैक्टर कहांगे, ए दा कहने आप। हुण की शो करना हैगा, जो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होएगी, ए इनवर्स की आइगन वैल्यू जिहड़ी हैगी आ वो एदा रेसिप्रोकल होएगी जो आइगन वैल्यू ए दी है। रेसिप्रोकल की हो गया, मतलब ऐ समझ लो। स्टेटमेंट ध्यान देखनी है, जो अपने को ए जे लैम्डा ए दी आइगन वैल्यू है तो 1 अपॉन लैम्डा रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा जो है वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होगी। ये शो करना, मतलब पहला जो प्रूव करना वो ध्यान देखना। हुणे किवें शो होगा, काम सौखा ही है जी। दोनों पासे ले लिया आप प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स ने प्री मल्टीप्लाई करता, ये आ गया ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स लैम्डा एक्स। इनू इकट्ठा कर लिया अपने, ये आई बन जाऊगा ए इनवर्स इंटू ए आई होंदा। ये लैम्डा बाहर कढ़ लिया, ए इनवर्स एक्स, ये लैम्डा चक के नीचे ले गए जी। आई इंटू एक्स किया एक्स आऊगा, यह लैम्डा चक के आप नीचे ले गए। तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय लैम्डा एक्स, मतलब देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये शो करनी सी, जे ए दी आइगन वैल्यू लैम्डा हैगी या तो ए इनवर्स की 1 अपॉन लैम्डा होगी। ये तो आर्टिकल सिंपल जे न्यूमेरिकल ने। तो देखो
एक होर न्यूमेरिकल करवाना हैगा। स्टेटमेंट देख लो, इफ A and P be square matrices of same type and P be invertible, then show that the matrices A and P inverse AP have same eigenvalues। चलो P इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब की हो गया अपने को कि P का इनवर्स कट सकते हैं। एक बार लाइन पाई है कि A एंड P आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप होंदा कि दोने सेम ऑर्डर के स्केयर मैट्रिसेस ने, मतलब इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। जो शो करना अपने कि A और P इनवर्स AP दियां आइगन वैल्यू सेम होणगियां। जो लैट कर लेना, लैट एक्स बी दा आइगन वैक्टर एंड लैम्डा बी दा corresponding आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये दोने मान लिया आप ए दी। की शो करना आपने कि जे ए दी आइगन वैल्यू आपने लैम्डा मनी है तो पी इनवर्स ए पी दी आइगन वैल्यू भी लैम्डा होएगी। हुणे किवें शो करना कि आइगन वैल्यू लैम्डा होएगी? उवें है जी, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्यों? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स आइगन वैक्टर कहने आप, लैम्डा ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? आइगन वैल्यू की ਦੀਆਂ? ए ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जे आप शो कर दिए P इनवर्स ए पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो की मतलब बन गया? ਇਹਦਾ मतलब बन गया कि एक्स आइगन वैक्टर लैम्डा की है, आइगन वैल्यू किहदियां ने? इस मैट्रिक्स दियां ने। जिहड़ा इत्थे मैट्रिक्स पिया हुंदा हैगा आइगन वैक्टर ते आइगन वैल्यू उस दियां हुंदियां ने। जिवें इत्थे ए पिया हैगा तो आइगन वैल्यू ते आइगन वैक्टर जिहड़े हैगे ने ए दे होणगे। सो ये शो करना आपां। चो देखो एक चीज़ होर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच आपां, वो किवें आ? लैट कर लो लैम्डा वन बी दा आइगन वैल्यू ऑफ पी। यही आइगन वैल्यू मान ली पी दी आपां। देयरफॉर हुणे कीता कि 1 लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स। ये पिछे आर्टिकल किया आपने। जे किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा वन हैगी आ तो उहदे इनवर्स की आइगन वैल्यू की होगी? एदी आइगन वैल्यू का इनवर्स रेसिप्रोकल लेना आपने। सो नाउ हुण इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं आप। पहले लिख लाने आप कि इत्थों कह सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो इत्थों की कह सकते हैं पी एक्स लैम्डा वन एक्स। इत्थों की कह सकते हैं आप पी इनवर्स एक्स वन अपॉन लैम्डा एक्स। ये डेफिनेशन ने आइगन वैक्टर दियां। नाउ हुण करना की है आपने? पी इनवर्स ए पी लिया, इंटू एक्स कर लिया, इनू इहदे बराबर शो करना। जो करते हैं इनू कला कला मल्टीप्लाई कर लो। पहला पी इनवर्स ए पी एक्स, पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को? पी इनवर्स ए लैम्डा वन एक्स। लैम्डा वन जो है इनू सारा बाहर कर लो, स्केलर है, कॉन्स्टेंट बाहर कट सकते। यह लैम्डा वन पी इनवर्स ए एक्स आ गया। हुण पी ए एक्स की वैल्यू कितनी है? लैम्डा एक्स। ये आ गया लैम्डा वन पी इनवर्स लैम्डा एक्स आ गई वैल्यू। इनू बाहर कढ़ लो जी, लैम्डा नू। लैम्डा वन लैम्डा पी एक्स आ गया। जेड़ा पी एक्स हैगा इत्थे, सॉरी पी इनवर्स सी, पी इनवर्स जिहड़ा पी इनवर्स एक्स आ 1 अपॉन लैम्डा वन एक्स आ, मतलब लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा वन एक्स ये कट गया इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो की शो करता आपने? आप शो करता कि पी इनवर्स ए पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। मतलब
जो आइगन वैल्यू ए दी सी उही आइगन वैल्यू पी इनवर्स ए पी दी, मतलब दोनों दियां आइगन वैल्यू सेम हो गई। देयरफॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड पी इनवर्स ए पी आर सेम, ये सेम होंगे। तो देखो अगे करना आप तो ये भी सारे सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है जो देख रहे हैं। बस लिखने का तरीका कि मैं समझाना ये। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड k इज स्केलर, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ a माइनस k आई आर अल्फा 1 माइनस k अल्फा 2 माइनस k अल्फा n माइनस k। ये शो करना अपन जो दिता की है अपन देखो, हेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। इहदा मतलब की है, इहदा मतलब यह है कि ए एक्स इक्वल टू अल्फा 1 एक्स, ए एक्स इक्वल टू अल्फा 2 एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू अल्फा 3x अप टू सोन ए एक्स इक्वल टू अल्फा n एक्स। ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ है ये आइगन वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जिमें आप किया x की हो गया अपने को कॉरस्पॉन्डिंगली आइगन वैक्टर बन गए। सो ध्यान दो हुण ये है की है, इदा कला कला लिखण की बजाय इनू जनरल लिखांगे आप। जनरल किवें देखो, लैट कर लिया नहीं देयरफॉर नहीं नाउ पालो, नाउ जो अल्फा आई है इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए 1 लैस दैन इक्वल टू आई लैस दैन इक्वल टू n। देखो ये 1 लैस दैन इक्वल टू आई लैस दैन इक्वल टू n मतलब की हो गया, आई नू 1 तो लैके n तक भरना, आई नू 1 भरांगे अल्फा 1 बन जाएगा, आई नू 2 भरांगे अल्फा 2 बन जाएगा, आई नू 3 भरांगे अल्फा 3 बन जाएगा, आई नू n भरांगे अल्फा n बन जाएगा। मतलब कि कला कला लिखण की बजाय आप इदा लिखता, गल एक ही है जी। ये फायदा की हो गया, उरे कला कला लिखना सी अपने, उरे एक नाल लिख के ही सारा काम सॉल्व हो गया। तो फिर आप लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू अल्फा आई एक्स, वेयर आई कितना लिया अपने 1 तो लैके n तक। हुण की कर रहे हैं आप, ध्यान दियो आपने की शो करना हैगा कि अल्फा 1 माइनस के अल्फा 2 माइनस के अल्फा n माइनस के, ये जो ने ये आइगन वैल्यूज होणगियां ए माइनस के आई दी, ਇਹਦੀਆਂ आइगन वैल्यूज होणगियां ने किवें शो करांगे। ये आइगन वैल्यू आपां ए माइनस के आई एक्स लवांगे तो शो करांगे कि ये अल्फा 1 माइनस के आई एक्स आ रहा, एक आइगन वैल्यू आ गई। फिर ए दी आपां दूजी आइगन वैल्यू शो करांगे अप टू सोन ए दी आपां फिर जो लास्ट वाली है वह आइगन वैल्यू शो करांगे। हुण ये भी आ कि कला कला पहला आ शो करांगे, आ शो करांगे, आ शो करांगे, की शो कर दो, ये शो कर देंगे आपां। ये गल समझनी है कि ए माइनस के आई नू आपां अल्फा आई माइनस के एक्स शो कर देंगे। इत्थे पा देवांगे 1 लैस दैन आई लैस दैन n। ध्यान रखना जी, ये सौखा लिखण वास्ते किते तो आपां कला कला प्रूव करना सीगा, किते सिर्फ आ चीज प्रूव कर दो,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ, i ਨੂੰ 1 ਭਰਿਆ ਅਲਫਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, i ਨੂੰ 2 ਭਰਿਆ ਅਲਫਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ i ਨੂੰ n ਭਰਿਆ ਅਖੀਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ i ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ x ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ a ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਆਈ ਐਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜੀ ax ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। i ਇੰਟੂ ਐਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਸੇਮ x ਆਊਗਾ ਜੀ। ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਆਈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ i ਕਿੰਨਾ ਵੇਰੀ ਕਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ a ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਆਈ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ i ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਐਕਸ i 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, therefore ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ a ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਆਈ ਆਰ, ਕਿੰਨੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਲਫਾ i ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਤੇ i 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ i 1 ਭਰਿਆ, ਫਿਰ i 2 ਭਰਿਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ i ਨੂੰ ਆਪਾਂ n ਭਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, i ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।